I'll take you back थोड़ा सा to the constitution that we were talking about and articles. तो और भी ऐसे articles हैं because I see कि Hindu temples भी government के control में हैं and I myself want to talk a lot about it but I don't know much in detail. So if you could just tell us what is this entire issue of Hindu temples? See, our Hindu temples in most of our states are under the control of the state government. Now, you know, for a lay person, एक आम आदमी ये सोचेगा कि अच्छा है गवर्नमेंट के हाथ में है, कम से कम कोई पंडित उसके पैसे तो हजम नहीं करेगा, कम से कम कुछ और फैसिलिटीज़ दे देंगे, गवर्नमेंट के हाथ में है तो फैसिलिटीज़ तो कम से कम दे देंगे. सही है कि फैसिलिटीज़ बढ़ाने की जो क्षमता है वो गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. पर ये सोचना कि हिंदू टेम्पल्स के लिए फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए और इसके लिए हम उसके लिए पैसे देंगे, ये गलत है. अब जब एक मॉस्क के लिए कोई फैसिलिटीज़ दिया जाता है तब कोई मॉस्क तो पैसे नहीं देती है गवर्नमेंट को उसके फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, या कोई चर्च को अगर हम रेनोवेशन की बात करते हैं जो होता रहता है ऑल ओवर आवर कंट्री, इट हैपेंस, द गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स. तो उसके लिए तो कोई चर्च ये नहीं बोलता कि चलो हम अपना जो आय है उसमें से एक थोड़ा सा आपको दे देंगे, ये तो नहीं बोलते हैं. देन व्हाई इज़ इट that when it comes to Hindu temples, every government thinks that it is their right over that money which is coming in the hundis. It should not be like that. The facilities should be given like what are the facilities that we are talking about also? It is about better roads, it is about cleaner space. If you ask any Hindu, he will tell you that. It's about better roads, cleaner space, it is about place to stay, or something like that. So this should be something which is the work of the municipality of that area. Why should it be the work of the temple authorities? Yes, it should be the work of the temple authorities within the boundary of the temple. वहाँ पर डेफिनेटली टेम्पल अथॉरिटी को ही काम करना चाहिए उसके लिए, एंड उसके लिए जो भी हुंडी में आता है रकम उससे उनको खर्चा करना चाहिए, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती इसमें. बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑल फॉलन इनटू दिस थॉट प्रोसेस दैट temples are earning, it is the money of society which should go back to society. Great, it should go back to society, but for what? That is an important question which people are not asking. Temple money should go back to society for propagation of dharma, to protect, let's say, your Gaushalas, to protect Vedic education, to protect your ancient scripts which we are having a problem with, to protect ancient monuments of ours, to protect temples which are in a state of so much disrepair that उनके पास पैसे नहीं है उसको रिपेयर करने के लिए. तो ये जो बड़े टेम्पल्स के जो इनकम है वो इसके लिए खर्चा होना चाहिए, ना कि सेक्युलर पर्पसेस के लिए. We are spending that money on secular purposes. You will wonder what the secular purposes are. I'll tell you, it is something that every leftist talks about. आप टेम्पल्स पे क्यों खर्चा कर रहे हो? हॉस्पिटल्स बनाइए. तो हमारे मंदिरों के हॉस्पिटल्स चलते हैं, तो लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल है तो सिर्फ हिंदू ही आके उधर ट्रीटमेंट लेगा. It becomes a secular purpose. So your Hindu temple money is going to be used for anybody from any community. Schools बनाइए, तो हमारे temples तो schools भी बनाते हैं, institutions, educational institutions बनाते हैं. तो but there again we cannot say that only Hindus will be put over there. We have no right in that. ठीक है, आप बोलते हो कि रोड्स बनाइए, तो लेकिन रोड्स पे क्या सिर्फ हिंदुओं का हक है? नहीं है, सबके, हर किसी का हक है ना. तो अगर ऐसा है कि अगर आप
हिंदू मंदिरों का जो पैसा है वो आप सेक्युलर पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इट शुड बी दैट बाकी लोग भी वैसे ही दे, वो तो नहीं देते हैं और हम मांगते भी नहीं हैं, हम तो तुरंत बोल देते हैं नहीं नहीं माइनॉरिटीज़ है, उनका अधिकार अलग है, बिकॉज सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर देम टू डिसाइड ऑन हाउ दे वांट टू स्पेंड देयर इनकम। लेकिन हिंदूज़ को ये अधिकार नहीं है। सेकेंड थिंग, जब आपका स्टेट गवर्नमेंट आपके मंदिरों का कब्जा कर लेता है तो क्या होता है, इट बिकम्स अ सेक्युलर बॉडी। देन यू कैनॉट इवन से कि जिसको आप एम्प्लॉय करते हो वो हिंदू ही होना चाहिए, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ है, काफ़ी बार आपने देखा होगा टीटीडी देवस्थानम में, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में आप देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो या तो क्रिश्चियन है या फिर मुस्लिम है। आपने हाल ही में देखा होगा, आई थिंक ओडिशा में जो I think commissioner or something, she wanted to enter the temple though she was a non-Hindu. See, all these things, if you go to say नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, तो वो हमारे ऊपर केस डाल देते हैं, and then वापस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है that all Bharatiyas are one, all Indians are one. So then you cannot. So if you want to be a secular nation, be a secular nation. Right. Put it for everybody. No, declare we are a Hindu Rashtra and allow us to take care of our own temples. We will use it only for Hindu purposes. Right. You can, as the government, you should and you can have a controlling authority in a different manner. For example, you can say that every expense and every income should be properly audited. ये आप कराइए. You can say that we must make sure that the expense which comes, let's say for example for the Goshala purposes, will be used only for Goshala, and if you all don't do that, then we will fine you or the government will punish you in some way or the other. Do that. Have a controlling measure to stop wrong things from happening. Do not have a controlling measure to stop good things from happening. This is the difference that we are asking for from our government. We do not want government control in our temples. We do not want that the money that we are putting in our hundi goes to purchase 11 lakh Innova for one of the staff of the temple. He may not even be concerned about that Innova when he is leaving the temple work, and he is transferred somewhere else. उसको तो कुछ लेना देना नहीं है उस मंदिर से. तो आपने ऐसे लोगों को स्टाफ में क्यों रखा है? नहीं रखना चाहिए. सेकेंड थिंग, एक बहुत विशेष बात है जब गवर्नमेंट कंट्रोल आता है, कंट्रोल की बात आती है कि सिर्फ हमारे टेम्पल्स जो है वो टैक्स भरते हैं. तो आप पूछेंगे कि टैक्स कहाँ कैसे भरते हैं, क्या जो हुंडी में आता है उस पर टैक्स भरते हैं? नो, हम हुंडी में जो आता है उस पर टैक्स नहीं भरते हैं. लेकिन जो भी पूजा सामग्री है, जो आप विशेष दर्शन कर लेते हैं, जो आप लड्डू बांटते हो, उन सब चीज़ों के ऊपर आपका GST भी लागू हो जाता है. That one more aspect of government control on our temples is the sale of land or giving out our premises, temple premise land or buildings on rent. Oh my God. Now what happens is that the temple economy includes those people who are selling pedas, flowers, all those things around the temple. Now when it is government controlled, you cannot say that that will be given only to a Hindu, that those shops will be only given to a Hindu. They are also given to people from other communities, with the result that you cannot really control whether that peda is made in a sattvic manner or not also. Now you can understand the hint I am giving, but this is a thing which has to be thought about a little more deeply. Secondly, if the running market rate of that giving a premise on rent is say 1,000 rupees, when the government controls that,
they also make sure that the land or that premise is given out even at a cheap rate of even 10 rupees per month, which is what our temples in Tamil Nadu are fighting against. Continuously for many years this fight has been going on. Even the land in Odisha, let's say last year I think in Bihar some temple land was sold. On what basis are they selling our temple lands? See, you cannot manufacture land. जो भगवान का है वो उन्हीं के पास में रहना चाहिए ना. गवर्नमेंट ये तो नहीं बोल सकती है कि भाई ये अभी हमारे कंट्रोल में है तो हम ये बेच डालेंगे. तो इतने लाखों एकड़ ज़मीन तो ऐसे ही बिक गए हैं. जो आपके पार्टी को सपोर्ट करता है आपने उनको दे दिया, बेच दिया इतने फॉर वेरी लेस फ्लिम्जी रेट्स. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स और धर्म को ऐसे जोड़ो कि पॉलिटिक्स को फ़ायदा हो जाए और धर्म का नुकसान हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वी स्ट्रांगली फील दैट आवर टेम्पल्स शुड बी मेड फ्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. What I read, जो थोड़ा बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है इंडाउमेंट एक्ट के बारे में, इट ऑल्सो स्टेट्स क्लियरली कि जो भगवान की मूर्ति है उस मंदिर की वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है. हाँ जी. विच मीन्स कि अगर किसी दिन कोई ऐसी सरकार आ गई who does not believe in it, they have a right to destroy it. No, this is exactly what is happening. कि अगर आप देखेंगे तो बलि प्रथा के ऊपर उन्होंने केसेस डाल रखे हैं कि बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए. अब भगवान को अगर बलि पसंद है तो आप कौन होते हो बोलने वाले कि वहाँ पर बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए. जो दूध चढ़ाया जाता है उस पर आपको आपत्ति है. आप बोलते हो कि आधा लीटर से ज़्यादा दूध नहीं चढ़ना चाहिए. अब भगवान अगर आई मीन आपको जो भी बोलना है, आपको डोनेशन वगैरह देना है, आप अलग से दे दीजिए ना. अब जो आप श्रावण मास में आप दूध चढ़ाते हो तो उसमें भी आप कैसे बोल सकते हो कि आपको नहीं चढ़ाना चाहिए. ये तो बहुत गलत हुआ ना. सो आई मीन इट इज़ इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. जो आपके रिचुअल्स है उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम है, जैसे शबरीमला में हुआ या शनि शिग्नापुर में हुआ. आप कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेकर आप ये बोलते हो कि भाई वहाँ पर महिलाओं को भी छोड़ना चाहिए. तो ये क्या आई मीन कोई संबंध नहीं है शास्त्र का और ये तरीके का विचार का. लेकिन बस आपको अपना विचार थोपना है शास्त्रों के ऊपर, वो तो नहीं चलता है ना. सो दिस इज समथिंग वेरी रिडिक्युलस एंड विच डज नॉट हैपन इन एनी कंट्री अदर देन आवर्स. व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग दिस गिल्ट इन आवर सेल्व्स कि वट एवर वी आर डूइंग और द शेम इन आवर सेल्व्स कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, तो हमको मॉडर्न तरीके से देखना चाहिए. तो जहाँ मॉडर्निज्म होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, और जहाँ पर आपको अपने एंशिएंट विचारों पे ध्यान देना चाहिए वो भी साथ साथ चलना चाहिए. एंड टू इग्नोर दैट इज़ वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग्स. बिकॉज ये जो विचार है, जो हमारे धरोहर है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर और रिचुअल्स ट्रेडिशंस वगैरह है, वो बहुत सूक्ष्म है. वो आपके जिस किताबी नॉलेज से आप नहीं सीख पाओगे. सूक्ष्म है. तो यू नीड टू अप्रोच ओनली धर्माचार्यस फॉर ऑल दिस. यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ कोर्ट जज टू गिव डिसीजन ऑन दिस. एब्सोल्युटली. सो ये विचार करना चाहिए. दिस ऑल्सो मेक्स मी रियलाइज कि इसीलिए हुंडी पे लिखा होता है कि दान सिर्फ दान पेटी में डालें क्योंकि इंडाउमेंट ऑफिसर आकर ले जाएगा. हाँ बिल्कुल. हम तो अगर पंडित ने 10 रुपये में और ज़्यादा मांग लिया तो वो तो लालची हो गया. लेकिन एंडाउमेंट ऑफिसर ने 11 लाख अपने फर्नीचर के लिए खर्चा कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा. एंड आई थिंक बहुत हद तक फिल्मों ने भी इस चीज़ को सही तरह से कभी नहीं दिखाया. हमेशा यही दिखाया कि पंडित लालची हैं, मंदिर जो है वो पुजारी पैसा ले जाता है. नॉट गोइंग वेरी फार, जो ओ माई गॉड फर्स्ट फिल्म थी उसमें उन्होंने क्लियरली सारे पंडितों पे डाल दी सारी सब धर्माचार्य, सब पंडित, सब खराब है. सिर्फ जो क्या बोलते हैं, जो वो लेफ्टिस्ट सोच धारा है वही सत्य है, वही ठीक है. क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न है. लेकिन वो भूल जाते हैं जितने भी लेफ्टिस्ट हैं ना, वो कभी अपने
वेस्ट के या जो एब्राहमिक रिलीजन्स है उसके खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे, वो कभी जुडाइज़म के खिलाफ नहीं बात करेंगे, वो कभी इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू तो एकदम उधर ही खड़ा है कि भाई वेल मुझे मार काइंड्स ऑफ